discussing on CFT. So if you just recall here what I said, that initially if an central metal atom is present which has certain degeneracy exhibiting, as the ligands approach, its overall energy will increase. So the orbitals, due to the repulsions from the ligand pair of electrons, their energy will increase. It will raise to an energy of some delta naught. From here, to conserve that energy, some of the orbitals which are getting more amount of repulsions and some orbitals which are getting less amount of repulsions were categorized. The one which were getting less amount of repulsions were called as T2G set. The one which were getting more repulsions were called as EG set. And we found that this center, which is the highest energy form of all the orbitals at degeneracy, this is called barycenter. With respect to barycenter, what I can say, the EG will be 0.6 times of delta naught up, and T2G will be minus 0.4 times delta naught down. After distribution, सर barycenter क्या होता है? barycenter is the energy energy of the orbitals after ligands have approached. What is the total potential energy? That is the barycenter. Okay. So at the barycenter, we want to check out, after distribution of electrons, how much amount of energy will be present in each and every orbital. Okay. Why that is important? Because that will help us understand whether there would be any pairing of electrons or whether there would be any excitation of electrons. Okay. We also came with the definition of CFSE, which suggests that it is the net stabilization energy relative to barycenter. So with respect to barycenter, whether it is up or down, that is what CFSE tells us. Or another way of looking at it is the energy gap between EG and T2G after distribution of electrons. And for that, what we found, in case if delta naught is greater than pairing energy, then pairing is preferred over excitation. Okay, which suggests that these are strong field ligands. So whenever strong field ligands approach, we can expect this to happen. In case if we have weak field ligands, then delta naught is less than pairing energy. What is pairing energy? It is the energy required to pair two electrons. Then excitation is preferred over pairing energy. Using these two, we can always calculate what is CFSE. By definition, mathematical definition is 0.6 times of number of electrons in EG into delta naught plus minus 0.4 times number of electrons in T2G, okay, into delta naught plus number of pairs into pairing energy. How many number of pairs we have into pairing energy. Like I told you the other day also, pairing energy is something which we do not worry too much about, because that value of pairing energy is usually very ignorant, at least in the cases which we are concerned with. Okay. So we would like to calculate the CFSE for every distribution of electrons in d orbitals and see how does the CFSE value be present in octahedral complexes. Okay. Yeah. Sir, what does delta naught represent in energy gap In before CFSE? before CFSE, okay. Ideally, this should be the amount of energy that should be raised. Okay, when a particular strength of ligand approaches. Ideally, इतना होना चाहिए. बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसमें,
और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा या कम एनर्जी मिलेगा, उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसमें वो एनर्जी का। So, हम्म, no, no, not that. I'm saying uh, delta naught is the energy gap as well, right? या बिफोर, Energy gap between correct, correct, E2G and before TG. adding any EG. electrons, ideally how much energy gap Eg and T2G must exhibit, that is delta naught. So it is only the energy difference between orbitals Energy difference between the set of orbitals, correct. without any electrons. When the ligands approach, correct, when you have a ligands approaching, the energy of the orbitals will definitely increase. So that is the Correct. energy we are writing. See, why we are writing that delta naught, okay? But those orbitals already have That's what I'm electrons, right? telling. See, suppose on an ideal case, all electrons are same, correct? So अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ पे ये ऑर्बिटल, मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, कुछ तो एनर्जी रेस हो रहा है। इमेजिन करो, ये थियोरेटिकली मैं बता रहा हूँ कि अगर इसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो शायद इतना रेज हो रहा है, दैट इज डेल्टा नॉट। ओके, नाउ व्हेन द एनर्जी इज देयर, सॉरी व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, यही एनर्जी तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऊपर और नीचे में, है ना? Correct. So what I'm telling you that delta naught is the amount of energy which we are expecting कि इतना amount of energy तो minimum उनमें आना चाहिए, considering ये किस पे डिपेंड करता है delta naught, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगैंड पे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे। सो देर आर मेनी फैक्टर्स ऑन विच डेल्टा नॉट डिपेंड्स, दैट इज व्हाट वील सी राइट नाउ। ओके, so the magnitude of delta naught depends upon lot many factors which we'll discuss. So depending upon those factors, either there will be more splitting or less splitting. Okay, now once you add the electrons, then we know actually वो delta naught का कितना amount बड़ा है कम हुआ है after distribution of electrons. Okay. Achha, sir, if there is a d phi configuration and if I say कि वो इस तरह से split हुआ है such that ऊपर और नीचे में हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, Come again. तो suppose there is a d phi configuration and they have split such that each of the orbital has only Correct. one electron. ऊपर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, So फिर can से I say जीरो हो जाएगा। in that case, मतलब ये एग्जैक्टली इतना ही रहेगा, CFSE वैल्यू भी उसका डेल्टा नॉट ही रहेगा। वैसे Correct. उस केस में ना ठीक है, या So सॉरी CFSE CFSE होगा। जीरो होगा, मतलब डेल्टा नॉट रहेगा स्प्लिटिंग में, CFSE जीरो रहेगा। ओके, ऐसे समझो बेटा, देखो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, रेट्रो करेंगे तो समझ में आएगा। ऐसे सोचो कि मेरे पास कोई सैंपल है, ओके, 5 मिनट स्पेंड करते, देन वील गो फॉरवर्ड। ओके, ऐसे सोचो एक कॉम्प्लेक्स का सैंपल है मेरे पास, गॉट इट? सो इन दिस सैंपल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लाइट भेज रहा हूँ, ओके, देन जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, दिस इज द एब्जॉर्ब्ड लाइट, ओके, करेक्ट, अब्जॉर्प्शन, सॉरी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, करेक्ट। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बेसिस पे कुछ कलर आएगा हमको, यहाँ पर मुझे कुछ कलर आ जाएगा, मैं विजिबल रीजन में ही ढूंढ रहा हूँ। सो विजिबल रीजन में मुझे कलर आएगा, ये मे बी, ये जो भी है मे बी दिस इज़ ब्लू कलर, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पूरा ब्लू कलर है, करेक्ट। तो मुझे ब्लू कलर नज़र आएगा, उसने कुछ और कलर एब्जॉर्ब किया बट मुझे नज़र आएगा ब्लू कलर, करेक्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, वो ब्लू कलर को मैं मैप कर रहा हूँ, ओके, एच न्यू नॉट के साथ, गॉट इट, बिकॉज दैट इज द लाइट विच वी आर सीइंग विच इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, है ना। तो ये जो लैम्डा इनवर्स है, लैम्डा इनवर्स को मैं मैप कर रहा हूँ इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से, करेक्ट। तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स पे मुझे समझ में आ जाएगा कि ये जो इंटेंसिटी है ना, इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ अपने डेल्टा नॉट से,
इस फॉर्मूला में नहीं जा रहा हूँ मैं, थियरिटिकली आपको बता रहा हूँ कि कैसे रिलेट कर रहे हैं। कि सपोज ऐसा कुछ पीक्स आ रहे हैं हमको, करेक्ट, मतलब ये वाला ब्लू लाइट होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी उसी का आ रहा है। तो सी व्हेन यू सी समथिंग एज अ ब्लू कलर, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ब्लू कलर आ रहा है, ब्लू कलर का इंटेंसिटी ज़्यादा आ रहा है। ये बेसिक लॉजिक सबको समझ में आता है, राइट। तो यहाँ पे हाँ भी ब्लू हाँ कलर का इंटेंसिटी ज़्यादा आ रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पर चेक करूँगा, तो ये कुछ इंटेंसिटी आएगा, इंटेंसिटी के बेसिस पे मैं कुछ उसका लैम्डा नॉट डिफाइन करूँगा, विच इज़ इक्वल टू सम एच सी, मतलब कुछ एनर्जी आ जाएगा इसका एच नॉट, डेल्टा नॉट का। ओके, मतलब ये मैं एसोसिएट कर रहा हूँ इसको, किसके साथ एसोसिएट कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे जो दोनों के बीच में एनर्जी गैप है, ओके, यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जंप होना है, ठीक है, तो मतलब उसको इतना एनर्जी कवर करना पड़ेगा ना, करेक्ट, हाँ डेल्टा डेल्टा नॉट नॉट जितना। जितना। जब ऐसे सोच कोई ऑर्बिटल में और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जब कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन को भेजा मैंने, करेक्ट, तो वो इलेक्ट्रॉन इस जगह से इस जगह जंप होने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा, डेल्टा नॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा, गॉट इट, समझा ना। तो वो स्प्लिटिंग एनर्जी है। अभी क्या होगा, कुछ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर होके ऐसे ऐसे रहेंगे, अभी कोई इलेक्ट्रॉन जाना है, अभी यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाना है, तो शायद उतना डेल्टा नॉट नहीं लगेगा, देन वी विल कैलकुलेट CFSE। आई होप यू एबल टू रिलेट, क्योंकि अभी क्या है, ये पेयरिंग भी कुछ उसको रिपेल कर रहा है, तो उसको उसके वजह से उसको थोड़ा एनर्जी आ रहा होगा, ओके, आपस में रिपल्शन ऑलरेडी है उसमें, and then this electron is jumping here, so I will relate that with CFSE also, correct। तो अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रॉन को एक T2G से EG जाने में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है, उसको रिलेट करते हैं डेल्टा नॉट के साथ। इज दिस क्लियर? ओके, उसके ओके बेसिस पे मैं ओके बता सकता हूँ कि कितना अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइट हो रहा होगा। ऑन दैट बेसिस आई विल बी एबल टू कमेंट ऑन कलर्स। ओके, यस बेटा। सर, सर। तो CFSE क्या है फिर? ओके, तो एक सर, मिनट मैं खत्म कर लूँ। जब देखो, CFSE ये बताता है बेटा कि आफ्टर इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, करेक्ट, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी T2G EG दोनों को मिला के टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना रेज हुआ है या कम हुआ है, ये बताएगा आपको। आपका इनिशियली E1 एनर्जी है, यहाँ पर देखो किधर गया, यहाँ पे ये ओरिजिनल एनर्जी ये है, बराबर, ये E1 एनर्जी है, ओके, ये E1 एनर्जी से ये एनर्जी तक रेज हुआ है, बट बिकॉज ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों के बीच का गैप है ना, थोड़ा कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज CFSE। ओके, ओके। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम इवन हो गया है, ठीक है, तो CFSE मतलब ओवरऑल जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है, जितना अमाउंट राइज करने में लग गया उतना ही अमाउंट नीचे जाने में कुछ लग गया। नहीं रहा। तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने अचीव किया है, ठीक है, वो EG में और T2G में इक्वली स्प्लिट हो गया है। आर यू गेटिंग दैट? ठीक है, हाँ। यस सर। और वेंकटेश बताओ। तो तो एनर्जी गैप जो है वो केसेस में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट है, तो उसमें इंस्टेड ऑफ डेल्टा नॉट विल सी सी, CFSE। करेक्ट, CFSE से हम लोग इतना ही बता रहे बेटा कि ऊपर कितना एनर्जी है, नीचे कितना एनर्जी है, ओवरऑल। ऐसा सोचो, CFSE का वैल्यू कैसे रिलेट करूंगा मैं बताता हूँ। CFSE का वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव आ रहा है ना, ओके, जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आता है, मतलब जितना ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम इट कैन गो अप टू -2.4। अभी कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिख जाएगा -2.4 डेल्टा नॉट तक आएगा। ओके, मतलब क्या है, डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड विच यू कैन गेट इज, यहाँ पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो अभी आप कैलकुलेट करोगे CFSE तो इतना आ जाएगा -2.4 डेल्टा नॉट। ओके,
आर यू गेटिंग दिस? इसका इसका मतलब है अगर इसका मैग्नीट्यूड मतलब लूंगा क्या मैं, था? इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, CFS इज ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड, ठीक है? मैग्नीट्यूड वाइज 2.4 डेल्टा नॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट? गैप है उन दोनों में, है ना? है कि नहीं? समझ हाँ रहे हो? ओके, तो हाँ, इन दैट हाँ केस मतलब ये क्या है, और नीचे के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स 2.4 डेल्टा नॉट है, मैक्सिमम इट कैन गो टू 0, मिनिमम इट कैन गो टू 2.4 डेल्टा नॉट, करेक्ट? इतना ही जा सकता है, मैग्नीट्यूड वाइज चेक करूंगा तो, करेक्ट? सो इससे ये मैं बता सकता हूँ कि हाँ 2.4 डेल्टा नॉट CFSE वैल्यू है, मतलब ये बहुत स्ट्रांगली स्प्लिट हुआ है, ओके? और ये स्प्लिटिंग की वजह से मैं क्या बता सकता हूँ, इसमें कुछ डिस्टॉर्शन एक्सप्लेन करते कि यहाँ पर जो भी लिगेंड आएगा, ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शंस उस पर कम लग रहा है, ठीक है? तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स विल कम ऑन दिस, करेक्ट, उसमें थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ऑर्बिटल जो जो ऐसा रेगुलर ऑक्टाहेड्रन होना चाहिए ना, ऐसे रेगुलर ऑक्टाहेड्रन होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ रेगुलर ऑक्टाहेड्रन शायद वो कुछ ऐसे हो जाएगा, इधर फ्लैट हो जाएगा, ऊपर की तरफ रेस बहुत छोटा दिख रहा है, समझ में आया? नीचे की तरफ भी रेस बहुत छोटा दिख रहा है ऐसे, आर यू गेटिंग इट? ये डिस्टॉर्शंस एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्प करता है CFSE का वैल्यू, ओके? बट अदरवाइज कलर एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ डेल्टा नॉट काफी है, ओके ओके? सर, लास्ट डाउट, उसमें जो हमें 2.4 डेल्टा नॉट का हाँ वैल्यू बेटा। मिला है, इसका मतलब ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को मुझे T2G से हम्म। EG में लेके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए उतना CFSE परफेक्ट, वैल्यू लगेगा, परफेक्ट, 2.4 डेल्टा परफेक्ट, नॉट उतना लगेगा। उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, ठीक है? तो ओके। मतलब एनर्जी गैप काफी बढ़ गया है ना, ओके? सो आई कैन से दैट हाँ हाँ। D6 configuration is very stable, isn't or not? D D6 कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी स्टेबल हो जाता है, क्योंकि नीचे का पूरा कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हमेशा ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना बेटा। तो नीचे वाला राइट। ऑर्बिटल कंप्लीटली स्टेबल हो जाता है, तो ऊपर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाने के लिए जल्दी इजी नहीं होता है। तो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, हाई एनर्जी रेडिएशंस ऑब्जर्व करेंगे। मतलब क्या करेंगे, वॉयलेट, ब्लू कलर ये वाले ऑब्जर्व करेंगे। जब वॉयलेट या ब्लू कलर ऑब्जर्व करेंगे तो हमको कलर आएगा येलो या रेड, ऐसे हम लोग कलर प्रिडिक्ट करते हैं, या कलर कलर एनालिसिस ऐसे बैक ट्रैक करते हैं। अगर मुझे कोई कलर रेड दिख रहा है, ज़्यादा रेड दिख रहा है, इसका मतलब है उसने जो सॉल्यूशन होगा उसने ज़्यादा हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व किए होंगे, ओके? I'll show you the color wheel also today, so you'll get an idea कि कौन सा कलर ऑब्जर्व करने से क्या कॉम्प्लीमेंट्री कलर आता है, ओके? ओके। आगे बढ़ते हैं अभी। सो फर्स्ट वी विल डू द मैथमेटिकल पार्ट, बिकॉज ये आपको सिलेबस में बेटा सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट है, इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल डाटा या उसका आइडेंटिफिकेशन कुछ भी आपको सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट CFSE का आना चाहिए बस, ठीक है? वो कैसे, देखो, मैं पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखता हूँ, सो दैट इज राइट D इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट? एंड इफ इट इज कॉन्फ़िगरेशन इन WFL, मतलब वीक फील्ड लिगैंड के साथ कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसे एसोसिएट करेंगे, देन व्हाट वुड बी इट्स CFSE वैल्यू, ओके? व्हाट विल बी इट्स म्यू वैल्यू, करेक्ट? सेम थिंग कॉन्फ़िगरेशन इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, what will be its CFSE value and what will be its mu value, ओके? म्यू के साथ में मतलब डाया या पैरा तो आप मेंशन कर ही लोगे, सो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ओके? आपको सिलेबस में क्या आएगा, देखो ये आएगा, कोई कॉन्फ़िगरेशन D1 आ रहा है, आपको पूछेगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वीक फील्ड में T2G और EG का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। देखो क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो हमेशा T2G में जाएगा, EG में तो जाएगा नहीं, सो EG 0 होगा, ये हो गया उसका कॉन्फ़िगरेशन।
CFSC क्या होगा, just we'll have to just apply the formula. I'll just bring that down here. Okay, solving के लिए easy हो जाएगा. देखो, तो what will be the value of CFSC? Okay, माइनस, क्योंकि ये पहले EG में जा रहा है तो कितना होगा, -0.4 इंटू डेल्टा नॉट. करेक्ट. सो म्यू वैल्यू कितना होगा, √3. ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी कुछ भी चेंज नहीं आएगा ना, दिस वुड बी सेम हियर ऑल्सो, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू हैव 1 2 3 तक तो सब कुछ सेम ही है ना, इन तीनों में कुछ चेंज होगा नहीं. एनी डाउट सो फार? नेक्स्ट D2 देखो, D2 में भी तो सेम ही रहेगा, T2G 2 EG 0. ओके, और ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स है मतलब कितना, 0.8, राइट. सो 0.8 डेल्टा नॉट, और ये कितना रहेगा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब √8 बोर मैग्नेट्रॉन्स. सो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए भी यही सेम रहेगा, देयर वोंट बी एनी चेंज. नेक्स्ट D3 के लिए चेक करेंगे, D3 कॉन्फ़िगरेशन वाले में भी T2G 3 EG 0, और ये अभी कितना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है मतलब -1.2 डेल्टा नॉट आ जाएगा, और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. करेक्ट, मतलब √15 आ जाएगा. करेक्ट, एंड द सेम थिंग स्टिल कीप गोइंग हियर. अब फोर्थ से हमको प्रॉब्लम आएगा. करेक्ट, सो व्हेन यू हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन, देन T2G 3 एंड EG 1 हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ वीक फील्ड लिगैंड, it will excite, it won't get paired up. While CFSC value, if you check it out, how much this will be? अब देखो CFSC वैल्यू के लिए यहाँ पे 0.6, राइट, माइनस यहाँ पे 0.4 टाइम्स ऑफ 3, सो -0.6 आ जाएगा. सो you'll get this as -0.6 डेल्टा नॉट, एंड रूट कितना है, 4 मतलब कितना आएगा, √24, सो √24 आ जाएगा. अब यहाँ पर क्या आ रहा है, T4 आ जाएगा, T2G में 4 आ जाएंगे, EG में अभी भी 0 है. ओके, सो 4 आ जाएगा तो मतलब -1.6 इंटू डेल्टा नॉट आ जाएगा. रूट अभी कितना हो जाएगा, 2 ही अनपेड बच गए इसमें, तो अभी √8 आ जाएगा. Got this guys? Have you understood? Correct? हाँ सर. Yeah. Why don't you Yes, do sir. the rest now? Okay, इसको देखो एक बार and try to do for D5 to D10. एक बार सब complete कर लो. So what I can say, the factors affecting magnitude of delta naught. This is the magnitude of delta naught. First, nature of ligand. What is the nature of ligand? But simple case, crystal field splitting, crystal field splitting, which is delta naught for octahedral, is more if the ligand has strong interaction. Here interaction is only repulsion, okay, with metal. Got it? Metal, and here electrons are right, so that it becomes easier. ब्रैकेट से समझो, रिपल्शंस के बारे में बात करो तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के, इंट्रैक्शन के बारे में बात करो मतलब मेटल और लिगैंड के बीच में अच्छा बॉन्ड भी बन रहा है. ओके, सो द strength of ligands is experimentally determined, and it is used as
spectrochemical series. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ा है, राइट? जस्ट लाइक वहाँ पे ई नॉट वैल्यूज डिफाइंड होते, यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल टेल अस कौन सा स्ट्रॉन्ग या वीक लिगैंड है. ओके, इन जनरल आई कैन से दिस वन दैट halides, okay, oxygen and sulfur containing or sulfur directly related ones are weak, correct? On the other hand, nitrogen and carbon directly connected are usually strong. Usually, ये हम लोग को देखने को मिलता है. So experimentally, what it has been found that weakest is coming from iodine, bromine, then SCN minus, Cl minus, F minus, OH minus, OX2 minus, oxalate, H2O, NH3, करेक्ट. इसमें आपको EDTA वगैरह भी पूछा है, तो मैं थोड़ा सा इधर और ऐड कर देता हूँ. ओके, क्योंकि कभी कभी ये भी हमको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इसमें इन द फैक्टर्स व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रेशियो फॉर दैट. ओके, सो हियर you will see oxalate, EDTA 4 minus, and then comes H2O. But exactly लिख देता हूँ, फिर से गड़बड़ हो जाए. ठीक, sorry. So then comes water. Afterwards we have NH3, we have pyridine, then EN पहले आएगा, pyridine, then EN, then bipyridine, I think NO2 minus, yeah, CN minus, CO, and NO plus. Okay, usually this is the strength. NO plus एक exception है, 3 electron donor. I told you that earlier. अदरवाइज इसको याद करने का तरीका देखो. सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर आप कंपेयर करो यहाँ तक. ओके, आप देखो यहाँ तक आप चेक करोगे तो ऑक्सलेट तक आप बेसिक कैरेक्टर ही कंपेयर कर रहे हो. ऑक्सलेट और द स्ट्रॉन्गेस्ट, सॉरी यहाँ पे OH तक. ओके, यहाँ पे देखोगे तो वाटर तक आप देखोगे तो वाटर इज द वीकेस्ट एसिड आउट ऑफ ऑल दिस. तो द रेस्पेक्टिव OH माइनस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट. सो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनेगा आउट ऑफ ऑल दैट. HI is the strongest acid, so that will be the weakest base. Okay. उसके बाद देखो ऑक्सलेट एंड EDTA दे आर बाइडेंटेट्स और हेक्साडेंटेट, क्योंकि जितना ज़्यादा डेंटिसिटी भी बढ़ते जाएगा किलेशन बढ़ते जाएगा. किलेशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा. दैट इज वाई दे आर स्लाइटली बिकमिंग लिटिल स्ट्रॉन्गर. ओके, वाटर इज लाइक द बॉर्डर लाइन. वाटर लेफ्ट साइड सबको वीक बनाता है, राइट साइड सबको स्ट्रॉन्ग बनाता है. सो दिस एंटायर लिस्ट हियर, फर्स्ट अमोनिया से स्टार्ट करके EN, फिर जैसे डेंटिसिटी बढ़ रहा है EN is bidentate, BPY that is also a bidentate part. Okay, NO2 minus, अभी जैसे NO2 minus आएगा उस पर रेजोनेंस उसको हेल्प कर रहा है. So that's why you will have and as soon as you get a double bond, I told you one thing, जैसे डबल बॉन्ड आ जाएगा synergic bonding स्टार्ट हो जाएगा. So NO2 minus से आपको synergic bonding भी दिखने लगेगा. Okay, so CO, NO plus, so these are all strong field ligands, otherwise these are all weak field ligands. ओके, जे में अभी तक वीक फील्ड लिगैंड का सीक्वेंस पूछा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का नहीं पूछा है. बट आइदर वेज ये इतना इन्फॉर्मेशन जो मैंने लिखा है ये NCERT
में इतना ही दिया हुआ है, आपको इतना एक बार रटना पड़ेगा. दैट विल बी बेटर इंस्टेड ऑफ थिंकिंग टू मच ऑन इट. जस्ट मेक श्योर लेफ्ट टू राइट एंड CO तक दिया हुआ है. CO तक यू शुड नो हाउ टू मेमोराइज इट. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट. या बेटा. सर हमने कोबाल्ट के साथ H2O एंड ऑक्सलेट का एक एक्सेप्शन देखा था विद कोबाल्ट D6 Yes, beta. कॉन्फ़िगरेशन. So something like that is with EDTA also. Something like that is with EDT also. Yes, beta. Cobalt EDTA plus -3 is also a strong field ligand. Okay. Okay, sir. अगर Okay, sir. ऑक्सलेट के साथ हो रहा है तो EDT के साथ तो डेफिनेटली होगा ना, राइट? Next thing that will the next important thing which is a factor to influence delta naught is oxidation state of metal. Metal, as it start getting more and more positive charge, it would have more attraction towards the ligands, so that increases it splitting between the orbitals. So I can write on that with increase in oxidation state of metal, the interaction between metal and ligand increases. So repulsions increases, which implies splitting increases, For example, cobalt H2O 6 plus 2, if you compare to that of splitting, H2O 6 3 plus is very stable, and that makes sense now. Okay, so जितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया है, लिगैंड्स तो सेम है, बट जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, minute, I'm getting a call. Yeah, sorry. So you can see for the same ligands, the metal which has higher oxidation state would usually make it to be more stable. The same kind of a question we dealt with nickel also, NiF6 overall 4 minus. If you compare that of NiF6 2 minus, nickel plus 4 oxidation state is very stable. So this is how it makes more stable, and stability is increasing because T2G electrons are increasing. If T2G electrons increases, CFSE becomes more negative. मतलब overall energy आपका कम हो रहा है, इसका मतलब overall molecule stable हो रहा है. Yes बेटा, tell me. सर हमने एक एक्सेप्शन लिया था वीबीटी में कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ने तो उससे ज़्यादा होगा, तो सब जो भी लिगैंड होगा उसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड ही मानेंगे, तो वो हम इससे हाँ, explain कर सेकेंड वाले पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. निकल +2 निकल +4 है, देखो. क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही वीक फील्ड लाइगैंड है, ओके, बट जैसे उसके ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया मेटल के ऊपर, सो इट हैज़ मेड दैट वेरी स्टेबल. सर मतलब उसमें पेयरिंग हो जाता है. पेयरिंग हो गया, इसके लिए तो एनर्जी गैप बढ़ रहा है. पेयरिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, वो पेयर कर रहा है, बराबर. मतलब T2G में जा इट रही इज है. कंप्लीटली पेयरिंग इन T2G. Is that okay? ओके, हाँ. Yes. सर तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो यूजुअली ज्यादा स्टेबल रहते हैं? Yes beta, which is making sense, right? Because whenever there is a strong field ligand, it will always try to pair more in N, I mean T2G rather than EG. Okay.
Now principal quantum number will also make some influence here. You can see that down the group, if you go down the group here, delta naught increases. Okay, delta O है वो basically octahedral. Delta O increases due to increase in Z effective. Okay, so Z effective is what? Effective nuclear charge and diffused shape of d orbitals. डिफ्यूज्ड शेप मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली रैंडमली घूम रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है. इफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, तो मतलब उनके ऊपर रिपल्शंस कैसे रहेंगे? चारों तरफ से रहेंगे ना, हर तरफ से रहेंगे. और मोर इम्पॉर्टेंटली न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, करेक्ट. सो स्प्लिटिंग काफ़ी अच्छे से हो जाएगा ऑर्बिटल्स में. ओके, बिकॉज न्यूक्लियस लिगेंड्स विल कम फ्रॉम any direction, they will experience enough repulsions, तो उसमें splitting काफ़ी अच्छे से हो जाएगा. For example, if I take cobalt NH3 6 overall plus 3 and I compare this with rhodium on the same group NH3 6 plus 3, compare that with iridium of the same group NH3 6 plus 3. Okay, if you see the stability wise, right, this is how the stability is. This stability cannot be explained by splitting, please understand that. क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते सर डेल्टा नॉट वैल्यू मतलब CFSE वैल्यू तो सबका मतलब D6 कॉन्फ़िगरेशन है, बट डेल्टा नॉट वैल्यूज इफ यू चेक आउट डेल्टा नॉट वैल्यूज ऑफ दिस, इफ यू कंपेयर विद द डेल्टा नॉट वैल्यू ऑफ दिस विद डेल्टा नॉट वैल्यू ऑफ दिस, इसका डेल्टा नॉट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है. ओके, because this will increase the splitting to a quite an extent. डेल्टा नॉट ज्यादा हो गया तो स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब T2G में एनर्जी बहुत नीचे की तरफ जा रहा है, करेक्ट. सो विच मेक्स इट मोर स्टेबल. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग बेटा, स्टेबिलिटी के लिए ना सिर्फ हम लोग डेल्टा नॉट ही नहीं बता सकते, बट ये इम्प्लाई ज़रूर करता है कि अगर स्टेबल ज़्यादा हो रहा है मतलब उसका डेल्टा नॉट भी ज़्यादा होगा. ओके, फॉर इंस्टेंस अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है मतलब उसका फैक्टर ये भी हो सकता है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इतना हाई है, मतलब पॉजिटिव में हाई है, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है ना मेटल. एंड रोडियम और इरिडियम और दोज केसेस विच स्ट्रांगली अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन pairs. Okay, and eventually because they are coming so close, their splitting energy would also increase. Okay, so delta naught is a consequence of more closer approach of ligands. Okay, yes Venkatesh. ओके. These are three important factors beta which will increase the magnitude of delta naught. Okay, so far we have studied about delta naught, मतलब ये क्या है? 6 ligand system. Now let us study about 4 ligand system. In 4 ligand system we usually see two things. One is tetrahedral, the other one is octahedral. So first I will write the CFT for tetrahedral complexes. Tetrahedral complexes. Okay, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाना मुश्किल होगा, मैं थोड़ा सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ, अच्छे से देख लो. सपोज इफ वी हैव द सेम एक्सिस हियर, ओके, एक्स वाई जेड एक्सिस में फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो फिर से एक बार चेक करो इसको. Sorry. Okay. So in here, let us say this is minus z, z, x, minus x, y, and minus y. Now usually ligands were approaching from axis, but this time if there are only 4 ligands which are coming, if there are
only 4 ligands coming. Best distribution क्या रहेगा? 4 ligands जब आते हैं तो you know that suppose if at all I take a tetrahedral molecule, got it? ऐसे tetrahedral molecule लिया space में, तो can I say that, अच्छे से देखना इसको, the distance between these two, these two, these two, these two and these two are same or not? Everyone agrees with that? हाँ, Everybody understood that, right? Correct? फेसेस सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल. Yes, yes. Okay. It's a regular tetrahedron. Regular tetrahedron मतलब हर तरफ से सेम रहेगा उसका. Okay. I hope all of you can imagine space में आपको 4 ligands आ रहे हैं या 4 molecule, simple case CH4. CH4 molecule हम लोग tetrahedral क्यों imagine करते हैं? If you are imagine space में 4 हाइड्रोजन आ रहे होंगे, theoretically बता रहा हूँ, ऐसा जो 4 हाइड्रोजन्स आने हैं उसको इक्वल एनर्जी के साथ, तो वो किस वे में आते हैं? टेट्राहेड्रल वे में आते हैं ना, करेक्ट? सो सेम थिंग इज अप्लाइड हियर आल्सो. इफ यू राइट द सेम टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन हियर, तो वो टेट्राहेड्रल कैसे दिखेगा? ओके, एक टेट्राहेड्रल का विंग इधर रहेगा, इधर रहेगा, और एक उसका कोई, और एक यहाँ पर, गॉट इट, एक पॉसिबली यहाँ पर, और एक कुछ ऐसे रहेगा, गॉट इट, ऐसे कुछ टेट्राहेड्रल बनेगा. ओके, अब इसको इन स्पेस समझो बेटा, 3D में स्पेस में समझो. तो लाइगेंड्स कहाँ से अप्रोच हो रहे हैं? इसका मतलब है लाइगेंड अप्रोच हो रहा है यहाँ से. वो फर्स्ट लिगेंड इज अप्रोचिंग फ्रॉम हियर L1, one ligand is approaching from here L2, one ligand is approaching from this L3, and fourth ligand is approaching from here L4. Okay. Now, if you check out the orbitals of, if you just recall the orbitals of d orbitals of metal, okay, बीच में तो metal है, this is metal, और metal के भी orbitals को हम लोग imagine कर रहे हैं. Metal orbitals, okay, if you check out this orbital and tell me which orbital this could be. Suppose एक orbital मैंने ऐसे draw किया है, right? So which orbital this could be? This could be dxy, DXY. correct? Yes, you guys understood that ये dxy हाँ. होगा, okay, हाँ. correct? और अभी दूसरा ऑर्बिटल में ड्रॉ करता हूँ. दिस ऑर्बिटल which is there, ऐसा है, सब ऐसा है, ऐसा है, कैसा, ये कौन सा है? DX So square d minus x square minus y square. Okay. अब थोड़ा लॉजिकली सोच के बताओ, when the ligand is approaching towards the metal, which orbital between dxy and dx square minus y square will get more repulsions? DX. है ना? लॉजिकली समझ रहे हैं अभी? क्योंकि आप अच्छे से ध्यान दोगे तो अभी लिगेंड्स है ना बिटवीन द एक्सिस आ रहे, नॉट अलोंग द एक्सिस, दे आर कमिंग बिटवीन द एक्सिस, राइट? So between the axis, if you see the orbitals aligned between the axis, let me write down that d orbitals oriented between the axis are dxy, dyz and dxz, है ना? Implies, okay, these orbitals will get more repulsion from ligands compared to dx square minus y square and dz square, because these two orbitals are completely along the axis. I guess this point is clear. Okay, yeah. Sir,
सो बट लिगेंड जो है वो टेट्राहेड्रल के अलोंग ही आ रहा है ना, तो डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा पास में है, DXY पास है कि वो दूसरा वाला? ओके इसमें देखो ना, यहाँ से ये समझ में आ जाएगा, इसमें एंगल कितना है और इसमें एंगल कितना है, कौन सा क्लोज रहेगा, क्योंकि लाइगैंड भी बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, तो उसके क्लोजेस्ट कौन सा ऑर्बिटल है, DXY है ना. इट मे नॉट बी कंप्लीटली हेड ऑन, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. अनलाइक ऑक्टाहेड्रल में कैसे हाँ एकदम हेड ऑन रिपल्शन था, यहाँ पे हेड ऑन नहीं है, विथ सम एंगल है, बट क्लोजेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल किसके साथ है, XY के साथ, XY के एज साथ, कंसिडर टू दैट ऑफ क्योंकि एक्स वो स्क्वायर भी माइनस वाई बिटवीन। स्क्वायर, करेक्ट है ना. तो दोनों को ही कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि जितने भी बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटॉल्स है, बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटॉल कौन कौन से है बेटा, यही तो है ये तीनों, DXY, DYZ एंड DXZ, ये तीनों बिटवीन द एक्सिस है. ये तीनों के क्लोजेस्ट 4 लिगेंड्स अप्रोच हो रहे हैं. गॉट दैट? यस सर। Okay. So these 3 orbitals are getting affected by 4 ligands. Okay. So what I can say that, and because again this is experimentally identified that delta T, now T represents tetrahedral. Understand that splitting energy here is tetrahedral. That would be equal to 2 by 3 times of 2 by 3 times into 2 by 3 times of delta naught. Again ये experimentally identified है, which means it is approximately 4 by 9 times of delta naught. दो फैक्टर आते हैं, इन शॉर्ट इट इज 3 ऑर्बिटॉल्स, करेक्ट. 3 ऑर्बिटॉल्स का लोब 2 लिगेंड्स को पोज कर रहा है, ये 3 ऑर्बिटॉल्स का लोब 2 लिगेंड्स को पोज कर रहा है. दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड इट. इज दैट क्लियर? ओके. 3 लोब, टोटल 6 लोब्स है ना, DXY, DYZ और DXZ के. ओके. सो हर लोब पे इफेक्टिवली 2/3 अमाउंट आ रहा है. एक्चुअली कंप्लीटली इफ यू चेक आउट डेल्टा नॉट में कंप्लीटली हेड ऑन है. इट इज लाइक दिस बेटा, अंडरस्टैंड दिस कि ये ऑर्बिटल है, यहाँ से एक बॉल आ रहा है सोचो, और इसको हेड ऑन हिट कर रहा है, और एक अभी एक ऑर्बिटल ऐसा है और बॉल ऐसे आ रहा है. ये हेड ऑन हिट तो नहीं कर रहा है, ओके, but based on certain angles, मतलब theoretically you can get to some amount of closeness here, and based on some angle that it is making, I can say that ये जो hit कर रहा है, यहाँ पे इसका intensity some x amount से hit कर रहा है, तो यहाँ पर 2/3 by x amount से hit करेगा. Is this clear? Right. So हाँ all we need to know is this, that delta t is quite less than that of delta naught, and that is how much, 4 by 9 times of delta naught. So in simple problem solving you should be able to find this. Okay, got it? Right. Now so one thing we can assure here that कि unlike octahedral, ये splitting energy बहुत ज़्यादा difference नहीं लाएगा between the orbitals. Okay, so which means if at all I plot the energy graph once again, yeah, Sir, so this time XY, YZ and ZX will yes be बेटा, EG. नहीं उसका नाम T2G है, but T2G अभी ऊपर चला जाएगा. Okay, so these are the orbitals. Initially it has some energy E1. From there इसका एनर्जी थोड़ा सा बढ़ गया d ऑर्बिटल का, and that got split into two new orbitals. This is the same set T2G and EG. Unlike पहले T2G नीचे आता था, अभी T2G ऊपर और EG नीचे, और उनमें एनर्जी डिफरेंस तो उतना ही रहेगा, that it is 0.4 times of delta T now, not delta naught, and this is minus 0.6 times of delta T.
Okay, overall this is what is delta T before electrons and CFSE after electrons. I guess that is clear now. CFSE का same value कैसा रहेगा? CFSE will be equal to 0.4 into number of electrons in T2G, okay, plus minus 0.6 into number of electrons in EG into delta T plus N into pairing energy. Is this clear? Any doubt so far? So usually when do we see this? When if four ligands approach and form tetrahedral complex, then preferably the energy difference between T2G and EG is less, okay, which also implies usually four ligands which are weak will give tetrahedral complexes. So in short, whenever you have weak field ligands, you should first think about tetrahedral complexes. Okay, ऐसा मत सोचो कि सर फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया क्रोमियम, ओके, H2O6, करेक्ट, और यहाँ पर है +3, सॉरी 4, H2O4, वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ. क्रोमियम, आयरन, इनफैक्ट आयरन तक, नॉट कोबाल्ट, ना कोबाल्ट तक, सॉरी कोबाल्ट तक यूजुअली आपको 6 लिगैंड सिस्टम में मिलते हैं, 4 लिगैंड, 2 लिगैंड, 3 लिगैंड, 5 लिगैंड मिलते ही नहीं है. बट चलो, बाय थियोरेटिकली इफ आई से क्रोमियम 4 +3, वी थिंक लाइक सर यहाँ पे तो D3 है, D3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक D ही चाहिए, एक D तो एम्प्टी मिल ही रहा है, तो ये तो DsP2 जाना चाहिए, sp3 क्यों जाएगा? इस केस में डेफिनेटली ये DsP2 ही जाएगा. बट ऐसे केसेस हाइपोथेटिकली ये मिलेंगे नहीं. बट जनरली जितने भी निकल, ओके, कॉपर, जिंक, कैडमियम, mercury, silver, gold, platinum, palladium, iridium, okay, these are all the metals which usually, in case if you have uh, weak field ligands, correct, they might go for tetrahedral complexes. इसमें भी first three are the most common ones because बाकी सारे तो होंगे ही नहीं. क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे 4D और 5D सीरीज के हैं, एंड वी नो दैट 4D और 5D में सबके सब स्ट्रांग हो जाते हैं. तो सब पेयर अप करके किस में चले जाएंगे? यूजुअली डी में चले जाएंगे, आई मीन DsP2 में चले जाएंगे. इज दैट क्लियर? या सो वो पेयरिंग अप क्यों होता है 4D 5D सीरीज में? इफ यू जस्ट गो बैक बेटा, एक सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा था मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, और एक उसी में लिखा था मैंने ना नीचे, न्यूक्लियर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे देखो, ओके, न्यूक्लियर चार्ज. देखो Z इफेक्टिव जितना बढ़ते जाएगा, ओके, इंटरेक्शन उतना स्ट्रांग होते जाएगा, राइट, वो उतना स्ट्रांग होते जाएगा तो स्प्लिटिंग और बढ़ते जाएगा. तो इवन इफ द वीकेस्ट ऑफ द लिगैंड अप्रोचेस, स्प्लिटिंग काफी ज्यादा हो जाएगा. ओके, सर डेल्टा नॉट बढ़ने से मतलब स्प्लिटिंग बढ़ता है, तो फिर वो डेल्टा नॉट बढ़ने से
वो पेयरिंग अप क्यों होता है? क्योंकि डेल्टा नॉट विल बिकम ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, correct? So अच्छा instead अच्छा, of हाँ exciting, it will prefer to get paired. पेयर्ड है। So we और सर स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होता है फिर? कौन से 4 लिगेंड्स में या 6 लिगेंड्स में? हाँ 4 अभी वही बात फोर करें, टेट्राहेड्रल समझाओ। अभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में यूजुअली स्क्वायर प्लेनर चले जाएंगे, स्क्वायर प्लेनर की बातें करेंगे अभी, ओके राइट। सो नाउ अगेन आई एम राइटिंग दिस 4 ligand system, 4 ligand system, which I will write CFT in square planar complexes, okay। सी स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को समझने के लिए आप हमेशा पहले ऑक्टाहेड्रल को समझोगे। थिंक ऑलवेज लाइक यू नो ऑक्टाहेड्रल कैसे बन रहा है। लिगेंड्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम -x +x, कहीं पे भी लिखूँ मैं माइनस इधर लिख देता हूँ, ओके -x एंड y एंड -y, z एंड -z, ठीक है। सपोज इफ आई से इन दिस डायरेक्शन टेट्राहेड्रल फॉर्म हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म हो रहा है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल 6 लिगेंड सिस्टम। इसमें सिर्फ इतना इमेजिन करना है दैट लिगेंड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम प्लस एंड -z, तो -2 ligands, if I remove that, what is remaining here now? M with 4, okay, which is these 4 ligands. Got it? So what is that? It is having x minus x, y and minus y, right? So in short, if you have a metal now, sorry, in case if you have a metal now, It is suffering major repulsions in dx square minus y square. yes beta, okay. So now this is a metal here and ligands are approaching. So imagine where does the ligands approach from now? One ligand will approach from here, ligand 1, ligand 2, ligand 3 and ligand 4. So which orbitals will suffer the most? One orbital which is oriented this way, एक ऐसा oriented है कोई orbital, got it? That is the only one which suffers the most, okay? Z orbital suffer करता है but बहुत कम, क्योंकि वो तो perpendicular है, okay? So let me show that, ये dz square orbital है, okay? बट उससे भी थोड़ा ज़्यादा रिपल्शन जो सफ़र करता है, इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली, वो ये है, कौन सा है ये? राइट, XY। सो डी एक्स वाई, दिस इज डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और ये हो गया डी जेड स्क्वेयर। एकदम लॉजिकली सोचो। सो इफ लिगेंड्स 4 ligands approach from this end only from x axis and y axis, x square minus y square will have the maximum repulsions and उसके बाद dxy फिर dz square हो सकता है ना? या सर सर XY को तो दोनों तरफ से रिपेल कर रहा है ना, तो वैसा तो कुछ नेट फोर्स है नहीं xy पे L फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड पे देखे तो L1 और L2 दोनों मतलब कर रहे हैं ना ऑपोजिट डायरेक्शन से उसको रिपेल, तो नेट रिपल्शन 0। ऐसे मत सोचो बेटा, ऐसे तो सब कुछ फिर तो 6 ligand सिस्टम में सब जीरो ही हो जाएंगे, राइट? इट इज नॉट अ वेक्टर विच वी आर चेकिंग आउट हियर, वी आर जस्ट चेकिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये कोई वेक्टर नहीं है ना, फोर्स नहीं है ये,
हाँ सर, नेट फोर्स 0 हो गया ना तो भी पोटेंशियल एनर्जी Correct. बढ़ता है। मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रहा Okay. हूँ। ओके, Okay, sir. so if you check out here, what I can say, initially देखो it started off from here 1 2 3 4 5, फिर ये ऑक्टाहेड्रल सोचते ही बढ़ने लग गया सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी। ओके, और मेटल स्प्लिट भी हो गया यही सोच के कि ये तो ऑक्टाहेड्रल वाला स्प्लिटिंग है। मेटल को अभी तक यही लग रहा है कि 6 लिगेंड्स आने वाले हैं, और धीरे धीरे स्प्लिटिंग कैसे हो गया, T2G और EG में कन्वर्ट हो गया यहाँ तक, T2G एंड EG यहाँ तक हो गया। बट जैसे ही लिगेंड्स अप्रोच कर गए क्लोजेस्ट टू द डिस्टेंस आ गए, देन इट रियलाइज्ड दैट एक्चुअली dz² पे रिपल्शंस बहुत कम लग रहा है। ओके, बट ज्यादा रिपल्शंस लग रहे हैं किस पे, dx² माइनस y² पे, तो उसका एनर्जी काफी बढ़ जाएगा। एंड dz² का जो एनर्जी है वो कम हो जाएगा रिलेटिवली। ओके, दिस इज dz²। एंड सेम वे इसमें से एक ऑर्बिटल जो सबसे ज्यादा इफेक्ट ले रहा है तीनों में से, एंड दैट वुड बी विच वन, dxy, XY. और बाकी दो तो बहुत कम रिपल्शन मिल रहा है उनको, विच इज dxy, सॉरी dxz एंड dyz। Okay, this is the splitting which you will see that is happening. So there are 3 different types of splitting energies you will get: delta 1, delta 2 and delta 3. So sum of these 3 is what you will get it as square planar. So this delta SP will be equal to delta 1 plus delta 2 plus delta 3. Yes beta. Sir, dz square is only along the axis, whereas dxz and dyz, they have two lobes which are very near to the ligands. See, you're forgetting the fact that dz² also has, okay, a ring which gets influenced a lot. सर भाई बहुत दूर है रिंग पे लेकिन। तो आ रहा है वो, लिगेंड्स रिंग पे तो रिपेल कर रहे हैं ना, क्योंकि रिंग तो एग्जैक्टली x² और y² मतलब xy एक्सिस पे ही तो है, अच्छा हाँ, तो उस पे तो रिपेल ज्यादा करेगा ना। रिंग को चारों तरफ से इसके लिए वो रिपल्शन। बढ़ रहा है। बट एक लोब कंप्लीटली दूर है, तो वो रिंग जो लोब का एनर्जी रिपल्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों में। एनी डाउट? Please let me know. Okay, what it has been observed experimentally, delta 1 है ना, the splitting was almost equal to that of delta naught, और delta 2 का splitting almost equal to delta naught by 3, and इसका splitting identified as delta naught by 12। तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 plus 1 by 3 plus 1 by 12 times of delta naught। Okay, so how much that is? Approximately that is 1.3 times of delta naught. Is this clear? Okay, yeah. सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हमने वो एक्स और वाई के अलोंग क्यों लिया था, मतलब लिगेंड्स उसी डायरेक्शन में क्यों अप्रोच करते हैं? 6 ligands will always approach from the 6 corners of an octahedron, and those 6 corners, if you join by lines, they will meet at the center, which can be represented as the origin of the metal, from which we can have 3 Cartesian coordinates.
हैव यू अंडरस्टूड? नहीं? ओके, नहीं 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लो. ओके, इस सेंटर से अगर मैं एक ऑक्टाहेड्रल बनाऊंगा तो वो ऐसे दिखेगा कि नहीं? हाँ तो 6 लिगेंड्स तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो बना रहे थे, वीबीटी में पढ़ा है ना हमने. तो मतलब वो हाँ लिगेंड कहाँ कहाँ पे होना चाहिए? एक लिगेंड 1 2 3 4 5 6, करेक्ट? So can I say this is like हाँ x-axis minus x, y-axis minus y, z-axis and minus z, correct? And I can take this as the center of the metal. तो अब इसमें से if it is the center of the metal, where are their orbitals? इस डायरेक्शन पे जो ऑर्बिटल रहेगा, ओके, यहाँ पे जो ऑर्बिटल रहेगा वो कौन सा रहेगा? dx² minus y². एंड ये जो ऑर्बिटल रहेगा वो कौन सा रहेगा? dz². Can you see those are getting the maximum repulsion from the ligands because it is an head-on repulsion. हाँ सर सर बट फिर वीक फील्ड लिगेंड्स में वो Because टेट्राहेड्रल now it has to, there फॉर्म are नहीं only होता है 4 ligands which are approaching. Imagine that way. अब सिर्फ 4 ligands ही अप्रोच हो रहे हैं, तो 4 ligands सिमेट्रिकली इन स्पेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? उनमें डिस्टेंस सेम होना चाहिए. तो एक टेट्राहेड्रल ही तो है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है जिसमें ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा, और ये दोनों के बीच में है कि नहीं? हाँ सर वीक फील्ड में ऐसा होता है बट स्ट्रॉन्ग फील्ड में फिर हम स्क्वायर क्यों लेते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड में हम लोग स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 तरीके के लिगेंड्स है. एक पहले हमने पढ़ा वीक फील्ड जब आ रहा है, करेक्ट? सी बेटा, हाँ ये सब कैसे, वी आर मेकिंग अ थ्योरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस. ओके, वी हैव, सर लेते हाँ, नहीं, ये होता है ना. basically whatever that was happening in ligands system, got it, उसको हम लोग थियोरेटिकल फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं, ये बोल के कि देखो ये सब वीक लिगेंड्स में ऐसे हो रहा है. मतलब पॉसिबली इसमें आप थियोरेटिकली कैसे समझ सकते हो? इमेजिन एज इफ इट्स अ टेट्राहेड्रन और उसमें 4 लिगेंड्स ऐसे अप्रोच हो रहे हैं. ओके, ओके और सेम वे और एक ज्योमेट्री भी मिल रहा है विच इज स्क्वायर प्लेनर. तो स्क्वायर प्लेनर में हमने को कैसे सोचना चाहिए वो तरीका मैं बता रहा हूँ. स्क्वायर प्लेनर में कैसे सोचना चाहिए कि एज इफ एवरीथिंग वाज कमिंग फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल बट सडनली 2 आना ही बंद कर दी. एग्रीड? सो नाउ दैट विल जस्टिफाई योर एक्सपेरिमेंटल findings. Got that? Right. So this square planar geometry, okay, delta sp was found to be 1.3 times of delta. So अभी splitting energies को मैं एक साथ में लिखूंगा. Okay, so you can see splitting energies. So what I can say that delta sp is maximum as compared to that of octahedral as compared to that of tetrahedral. Yes beta? So it is approximately 1.4 delta naught. 1.4 आ रहा है क्या? 3 अच्छा 3 आ रहा है ना. so मैं उसको चलो 1.35 लिख देता हूँ, ठीक है? 17/12 ना. 1/3 is 0.33, 1/12 is 0.8. वैसा मत करो, वैसा मत करो. पूरा पहले फ्रैक्शन बना के फिर डिवाइड करो. उतना क्यों कर यार, मुझे सिर्फ अप्रोक्सीमेट आइडिया चाहिए. सच्ची? कितना आ रहा है? 1.4 आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, हाँ. 1.4 1.4 डेल्टा नॉट से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है हमको. इतना दिखाना ही, मुझे ये दिखाना है आपको. सिर्फ एग्जाम में ये पूछेंगे आपको, ये अच्छा रहेगा तो कितना रहेगा.
Is that clear? ऐसे डायरेक्ट पूछेंगे? So this is a kind of objective type questions that would be asked, which of the following will have more energy. Okay, all right. So what we have observed that dxy is dxy, x square minus y square, okay, is getting more destabilized. Okay, अब देखो बेटा, एग्जाम्पल मैं फिर से करके दिखाता हूँ जो निकल का हमने किया था. देखो निकल, गॉट इट, CN4 2 minus, you know that cyanide is a strong field ligand, so SFL है ये CN minus, and nickel is at the oxidation state of +2, which we can say that it is argon 4s0 and 3d8, right? And these this set of d orbital is going to split in square planar way. Okay, तो हम लोग देखेंगे कि पहले 2 ऑर्बिटल्स है, फिर उसके बाद और एक ऑर्बिटल है, फिर उसके बाद और एक ऑर्बिटल है, फिर लास्ट में और एक ऑर्बिटल है. तो देखो अभी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है. टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे हैं. अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. कैसे करेंगे? फॉलोइंग ऑफ बोस रूल 1 2, फिर उसके बाद 3 4. करेक्ट, पहले कंप्लीटली फिल करने के बाद ही नेक्स्ट पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे दिस डेल्टा 3 विच आई हैव रिटन हियर इज स्टिल मोर देन दैट ऑफ पेयरिंग एनर्जी. ठीक है, तो आप पहले इधर ही कंप्लीट कर दोगे. 4 डन, 5 6 7 8. Got it? So can you see that now dz square, sorry, dx square minus y square is empty, and that we will use 4s is empty and 4p, and 4p is empty. So where does the electrons go now? 2 electrons will go here, 2 will go here, 2 will go here, 2 will go here. So finally what is the hybridization we are getting? dsp2. Is this clear? So for strong ligands, this is how you need to check it out. Sir, px and py orbitals have been used. Yes, here the p which we are using is px and py and not pz. सर, रिपल्शंस जिस डायरेक्शन में ज्यादा हो रहे हैं, हम लोग ऑर्बिटल्स उसके तरफ ले रहे हैं क्या? रिपल्शंस जिस डायरेक्शन में ज्यादा है, उस डायरेक्शन में हम लोग अपने ऑर्बिटल्स ले रहे हैं क्या? Correct. Why so? See, these orbitals are empty. Okay. See, according to CFT, what it is saying, that metal will have some empty orbitals. Correct. It is like a point charge. It is not telling us hybridization. But what we are concluding through it कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ओवरऑल मेटल पॉजिटिव चार्ज है. करेक्ट. ओके, सो अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ रहा है एज ए लिगैंड, राइट, इट विल ट्राई टू ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल्स, राइट, विच आर इन इट्स डायरेक्शन, राइट. वो यहाँ पे कोई ऑर्बिटल है तो वहाँ पे थोड़ी जाएगा. ओके, सो उसके डायरेक्शन में जो ऑर्बिटल आ रहा है उसके साथ वो बॉन्ड कर लेगा. सी, हंस रूल तो फॉलो कर रहा है ना. ओके, Satisfying, हाँ. हाँ, it is satisfying the Huns rule because this is the new set of orbital now. Okay, just like EG T2G है, इसका भी नाम है बट वो अपने को सिलेबस में उतना सोचना नहीं है. ओके, इसका एक नाम है, इसका एक नाम है, इसका एक नाम है, इसका एक नाम है. ओके, पहले T2G और EG होते थे. हाँ. अब इसका कुछ और नाम है. 1 2 3 4 सोच ले. ओके. सो 1 इज डीजेनरेट ना, तो पहले 4 उसमें फिल कर ही रहे ना, फॉलोइंग हंस रूल. Is that clear? Yeah. Okay, one simple understanding what you need to have, ये एक बार एग्जाम में आया था ऐसे ही, that if we have a 6 ligand system which is converting into a 4 ligand system, for example if I take cobalt H2O 6,
overall it is 2 plus 4Cl minus, got it. देन ये एक्सपेरिमेंटली गिवन है, COCl4 बन रहा है 2 माइनस प्लस 6H2O, okay. Delta H here is given positive, okay. Right. Now if you observe, the reaction to happen is only entropy, correct. If you see delta G is equal to delta H minus T delta S and delta H being positive, so the reaction can only happen if delta S is greater than 0. Got it? So if you provide heat to these kind of reactions, they can happen. 6 ligands can be converted into 4 ligands considering their entropy is increasing. Are you getting the point? Okay. So one thing for these kind of reactions, how do we judge? You just have to, in the case that you have to check out this. If it is an octahedral complex converting to a tetrahedral complex, or usually we write it as TD, okay, then delta H will always be positive for all the complexes, क्योंकि पहले स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा था, CFSE वैल्यू ज़्यादा आता है नेगेटिव में, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है. अभी टेट्राहेड्रल का कैलकुलेट करोगे तो CFSE वैल्यू कम हो जाएगा एंड यू नो दैट स्प्लिटिंग इज लेस इन दिस. सिमिलरली स्क्वेयर प्लेनार, if it is converting into octahedral, okay, then also delta H is positive, okay, or square planar converting into tetrahedral, then also delta H is positive. Is this clear? Yeah. स्प्लिटिंग ज्यादा है तो स्टेबल होता है वो. स्प्लिटिंग ज़्यादा रहेगा तो नीचे वाले ऑर्बिटल्स में स्पेयरिंग हो जाएगा. पेयरिंग ज़्यादा हो जाएगा मतलब उसका ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू में एनर्जी है, करेक्ट. सो एनर्जी काइंड ऑफ रिलीज हो रहा है, ओके. तो स्टेबलाइज हो रहा है ना. हाँ सर. ओके, आई गेस दिस इज क्लियर. तो बस ये पॉइंट याद रखना है आपको कि इन केस आपको ये बताया गया कि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में बदल रहा है तो उसका डेल्टा एच आपको सेंस आ जाना चाहिए कि ये तो पॉजिटिव होगा. ओके, नेक्स्ट गिव फ्यू नोट्स हियर जो यूज आ जाएंगे. सपोज इफ यू हैव 4D8 and 5D8 which is palladium platinum cases, okay, complexes like palladium plus 2, platinum plus 2, rhodium plus 1, iridium plus 1, okay, gold plus 3, okay, silver plus 3, but silver plus 3 बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है, वो डी ब्लॉक में पड़ेंगे. So for these complexes they usually form square planar only. Square planar complexes with all SFL and WFL. Okay, because if we go for delta O, okay, usually experience more ligand repulsions, because ligands are coming very close in this case ना, मेटल के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं. सो 4 से 6 की तरफ जाएंगे तो ligands में रिपल्शन ज़्यादा आ जाएंगे. सो दैट्स वाई दे ट्राई टू एग्जिबिट डेल्टा SP ओनली, is more preferred than delta naught. That's why you'll see what I'm saying ना, palladium, platinum, rhodium, iridium, gold, इन सब के 4 ligand complexes बहुत ज़्यादा होते हैं as compared to 6 ligands. Why that is happening is
they all would have very strong nuclear charge, so they would attract ligands to very close distance. So from 4 if it becomes 6, right, ligands के बीच में repulsion ज़्यादा रहेगा. Okay, is that clear? Okay. Right, so that's why they usually go for more of 4 ligand system. Second, nickel can give both. If you see nickel, yeah, और आपने कंक्लूजन भी तो डाला था कि डेल्टा एसपी इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ. delta, ऊपर आपने एक ट्रेंड दिया था, डेल्टा एसपी इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ. हाँ बेटा, प्रिफर्ड हमेशा डेल्टा एसपी ही होता है, बट 3D में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है 3D में. 4D में 5D में वो इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो पूरे के पूरे स्क्वायर प्लेनर ही जाएंगे. ओके, सर वहां पर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि डेल्टा ओ जो है डेल्टा एसपी से ज्यादा हो जाता है? डेल्टा ओ जो है, कैसे हम, जैसे हमने डेल्टा ओ जो है पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो गया, इसलिए हमने पेयरिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दिया ना. हाँ, वैसे ही अगर डेल्टा ओ डेल्टा एसपी से ज्यादा हो गया तो कैन वी से कि डेल्टा ओ डेल्टा एसपी से ज़्यादा हो ही नहीं सकता. इट इज़ ऑलमोस्ट 1.3 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ, मतलब डेल्टा एसपी हमेशा, डेल्टा एसपी तो ऐसे हो रहा है ना कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की तरह होके फिर फर्दर स्प्लिटिंग हो रहा है, तभी डेल्टा एसपी बन रहा है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हम्म, ओके ओके. सर या तो यहाँ पर रीजन नहीं समझा उसका, किसका बेटा? ये ऊपर आपने जो बोला. ओके, ठीक है, एक बार मैं दिखा सर रहा इसका रीजन सिर्फ रिपल्शन ही है ना? हूँ. हाँ बेटा, वो दिखा रहा हूँ एक मिनट. ओके, ये मेटल है. ओके, सो इमेजिन ये मेटल के सराउंड, मेटल का न्यूक्लियर चार्ज यहाँ तक आता है. ओके, अब मेरे पास 6 लिगेंड्स अप्रोच हो रहा है. गॉट इट? तो 1 2 3 4 5 6. ओके, सो यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पर एक आ रहा है, यहाँ पर एक आ रहा है, और यहाँ पर एक आ रहा है. ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग, इफ़ यू सी प्रिफर्ड वाइज, डेल्टा नॉट वाइज भी आप चेक करोगे तो एस पी इज मोर प्रिफर्ड देन डेल्टा नॉट, है ना? करेक्ट. तो ऑन टॉप ऑफ दैट ये इतना क्लोजली बॉन्डेड है, तो इनके बीच में जो रिपल्शंस है वो बढ़ने लगेंगे. ओके, तो वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू बी मोर स्टेबल इन +4 एज कंपेयर टू दैट ऑफ, मतलब 4 लिगेंड सिस्टम एज कंपेयर टू दैट ऑफ 6 लिगेंड सिस्टम. तो ये ऐसे ही रहने के प्रेफर करेंगे ये मॉलिक्यूल्स. आर यू गेटिंग दिस? तो वो लिगैंड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करता है क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, बड़ा है, 4D ज़्यादा है. साइड. करेक्ट करेक्ट. ओके, हाँ क्लियर है अभी? सर. तो उसका 6 लिगैंड वाला एग्जिस्ट नहीं करता है? नहीं करते हैं बेटा, मैं मना नहीं कर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करते, मैं बोल रहा हूँ दे प्रीफर टू बी मोर इन 4. मतलब आपने कुछ चांस दिया उसको 4 बनने का. ओके, ऊपर देखो उल्टा है ना, ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल जाने के लिए टेंडेंसी, ओके सॉरी, ऑक्टा इधर किधर लिखा मैंने, या नीचे देखो इधर, स्क्वायर प्लेनर से ऑक्टाहेड्रल जाने की टेंडेंसी पॉजिटिव है ना, मतलब लेस. करेक्ट, बट ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी ना. करेक्ट, तो टेंडेंसी ज़्यादा है उस तरफ. ऑक्टाहेड्रल टू स्क्वायर प्लेनर जाने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है वो. एंड अनदर थिंग बेटा, जैसे आप पैलेडियम प्लैटिनम तक आओगे ना, साइज भी श्रिंक हो रहा है. आप ऐसे कंपेयर मत करो, आप ये मत कंपेयर करो कि सर निकल का साइज तो छोटा है पैलेडियम से, बट पैलेडियम प्लैटिनम का साइज ऑलमोस्ट सेम है. करेक्ट, बट निकल का जितना न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो बहुत कम है कंपेयर टू दैट ऑफ पैलेडियम और प्लैटिनम. ओके, इज दैट लॉजिक अंडरस्टूड? सर वो ऊपर आपने बोला ना वो ऑक्टाहेड्रल से एसपी, वो क्या? यही तो हो रहा है ना बेटा. यहाँ पे देखो 6 थे ना, करेक्ट. हाँ. फ्रॉम 6
इफ इट इज गोइंग टुवर्ड्स 4, ओके। अब बताओ कि डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये प्रिफर्ड इसकी टेंडेंसी है ना इसकी तरफ। अच्छा ओके हाँ। तो would it prefer to be in 6 ligand form or 4 ligand form? 4 4 ligand form, okay. Sir, It does not mean that there is no 6 ligand forms. There are, but they still have tendency to become 4. Yeah. Entropy change is also positive. Delta H factor is much bigger, okay. see, delta H is negative from octahedral to Correct, square beta. plane. But delta H factor is much bigger compared to delta S factor. Oh, okay, okay, Always. okay. Yeah. Okay. Check out nickel plus 2 if it is going with weak fields like X minus, which means halides और यहाँ पे साइनाइड्स, ठीक है। तो ये हमेशा टेट्राहेड्रल देगा और ये स्क्वायर प्लेनर. It will prefer to give always square planar. Is that clear? Right. Okay. Right. Okay. That brings to one question here. Suppose if you have nickel PPH3 twice Cl2. Okay. इसमें देखो दो स्ट्रॉन्ग है दो वीक है. Got it? हाँ इसमें डिसाइड कैसे करने का? हाँ वही बता रहा हूँ. Shows dependency on temperature. ओके. डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको डिफरेंट म्यू वैल्यू मिलेगा, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगा. ओके. हाउ कैन यू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर? फर्स्ट एट लो टेम्परेचर, सेकेंड एट हाई टेम्परेचर. ओके. देखो अब यहाँ पे ऊपर जाके फिर से चेक करो. हाई टेम्परेचर, इफ यू हैव हाई टेम्परेचर मतलब हमेशा एंडोथर्मिक वाले केसेस होंगे ना. एनर्जी दे रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा. करेक्ट गाइस, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? है ना. तो अभी डाल के देखते एक बार. सपोज इफ यू हैव टेट्राहेड्रल केस, सॉरी अगर ये टेट्राहेड्रल है ऐसे PPH3, ओके, PPH3 Cl and Cl, ठीक है. अगर स्क्वायर प्लेनर है तो यू मे हैव PPH3 Cl and Cl, ठीक है. दिस इज द केस व्हाट यू विल हैव. करेक्ट. स्क्वायर प्लेनर में ऑल्दो दीज टू आर स्ट्रॉन्ग, स्क्वायर प्लेनर में रिपल्शन ज़्यादा होंगे इसमें. Got it? Because these are bigger size and they are all lying on one plane. Got it? ये सब के सब एक ही प्लेन में रहेंगे तो ये आपस में रिपेल ज़्यादा करेंगे. ओके. सो रिपल्शन वाइज इफ यू चेक आउट, किस में ज़्यादा रिपल्शंस रहेंगे? स्क्वायर प्लेन में ज़्यादा रिपल्शंस है, स्क्वायर प्लेनर. बट टेट्राहेड्रल में रिपल्शंस नहीं है क्योंकि थ्री डायमेंशनली फैला हुआ है. ओके. थ्री डायमेंशनली फैला होगा तो ऑब्वियसली उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा है, सो उसमें रिपल्शंस कम रहेंगे उसको. गॉट इट? आप एक बार टेम्परेचर का सॉरी थर्मल स्टेबिलिटी को याद करो. थर्मल स्टेबिलिटी किस तरफ जाता है ज़्यादा? जहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब जहाँ पे रिपल्शंस कम होंगे, करेक्ट, वो ज़्यादा टेम्परेचर सस्टेन करेगा. जिसमें रिपल्शन ज़्यादा है वो टेम्परेचर ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा. आर यू गेटिंग दैट? करेक्ट. तो मतलब एट लो टेम्परेचर मैं इसको मेंटेन कर सकता हूँ, बट हाई टेम्परेचर
रिपल्शंस और बढ़ने लगेंगे तो वो इमीडिएटली किस में, हाई टेम्परेचर सॉरी, तो किस में बदल जाएगा, टेट्राहेड्रल में बदल जाएगा। समझ में आया? तो आपको ये क्वेश्चन दे सकता है कि लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे बता। बनेगा। वो स्क्वायर प्लेनर बनेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, वो भी मैं बता देता हूँ। रोडियम का केस है, सेम क्वेश्चन रोडियम के साथ। ओके, सपोज इफ आई टेक नेक्स्ट एग्जांपल हियर, रोडियम PPH3 थ्राइस Cl। ओके, ये क्या है? विल्किंसंस कैटलिस्ट है। हाँ। याद आ रहा है कुछ? विल्किंसंस कैटलिस्ट, व्हाट डज इट डू? हाँ, हाइड्रोजनेशन। Hydrogenation, right? Okay, one of the best catalyst used for hydrogenation. Okay, this is कुछ एक्सेप्शन था क्या इसमें? ना ये है। अच्छा, नॉर्मली आप बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है ना ऐसे, R1 R2 R3 R4, तो क्या होता है, निकल प्लैटिनम पैलेडियम प्योर वाले इजीली नहीं कर पाते रिडक्शंस। ओके, है ना? याद आ रहा है? रिएक्टिविटी कम होने लगेगी। करेक्ट? हाँ, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वो एड्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, उसके लिए वो अच्छे से बैठना चाहिए, उसके लिए Correct. ग्रुप्स को छोटा रहना पड़ेगा। करेक्ट। तो बट रोडियम क्या है, बड़ा साइज मॉलिक्यूल है और उसमें ये फैले रहते सारे, तो उसके वॉइड्स अच्छे रहते। ओके, ये तीन होने पर भी PPH3 थ्राइस, ये तीन होने पर भी इट इज स्क्वायर प्लेनार। ओके, बिकॉज रोडियम रिलेटिवली साइज बड़ा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इज रेस्पेक्ट टू कोबाल्ट। सो इफ यू चेक आउट these four, okay, it will have PPH3 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 and Cl. Got it? So this will be square planar only. Hybridization DsP2. सर अगर एक ही होगा तो PPH3। एक ही होगा तो भी स्क्वायर प्लेनार ही, वो तो वैसे भी स्क्वायर प्लेनार ही है ना। ये तो रिपल्शंस हाँ। के बेसिस पे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, कि तीन होने के बावजूद, इतना रिपल्शन होने के बावजूद भी वो स्क्वायर प्लेनार है। समझ रहे हो? सर तो ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता कि होता है? ये टेम्परेचर पे ये सस्टेन कर लेगा, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे। Got it? Because it is more stable. See, here it was not stable because nickel size is not sufficient enough to hold even 2 PPH3 on square plane. But here rhodium size is big enough that it can hold that 3 PPH3 on one plane. Okay? ओके। हाँ। एंड सर, Hmm. इनिशियली भी हम लोग का ट्रेंड यही था कि स्क्वायर प्लेनर रहने का टेंडेंसी ज्यादा रहेगा। Come again? स्क्वायर प्लेनर ग्रेटर देन ऑक्टाहेड्रल, ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल। Right, right. अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम पहले केस में ये आया था कि रिपल्शंस बहुत थे। हाँ, वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। प्लीज दोनों को मिक्स मत करो। वहां पे डिस्कशन ये था कि 6 फॉर्म करेगा या 4 फॉर्म करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन रिपल्शंस का है, विद इन 4 टेट्राहेड्रल फॉर्म करेगा या स्क्वायर प्लेनर फॉर्म करेगा। ठीक है? तो वहां पर हम लोग वो डेल्टा एसपी और डेल्टा टेट्राहेड्रल कंपेयर नहीं करेंगे? डेल्टा एसपी और डेल्टा टेट्राहेड्रल। इस केस में ना, हाँ। नहीं, यहाँ पे रिपल्शन डोमिनेंट फैक्टर है ना, इसके लिए रिपल्शन बेसिस बता रहे हैं। ओके ओके ओके। Shall we go ahead now? Okay. Now let us see the applications of CFT. देखो, I'll tell VBT limitations orally, but I'll write that in the notes. Okay, let me just tell you orally. VBT में क्या क्या advantages थे, क्या क्या disadvantages थे. Okay, one advantage was hybridization. We were able to justify hybridization. We were able to find the structure of the complex. Okay, second thing was magnetic property. Got it? To some extent, most of the compounds we were able to find out, justify उसका paramagnetic या diamagnetic observe करेंगे, right? That was something justified. Next, we came up with very mild idea about being a high spin complex or a low spin complex. Okay, but that was linked to
बीइंग स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, मतलब यहाँ से अपने लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएंगे कि VBT could not explain why I should categorize something as a strong field ligand or a weak field ligand. This was one of the problems. Second thing, it could not explain whether complex will go for tetrahedral, octahedral, right? Whether it will go for square planar. ये लॉजिक कुछ भी नहीं दिया था VBT में. CFT at least has given to some extent that 4D 5D वाले ज़्यादा किसको प्रीफर कर रहे हैं, टेट्रा स्क्वायर प्लेनर को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं. दे आर 3D वाले कुछ केसेस है जो सिर्फ स्क्वायर प्लेनर, या कुछ केसेस है सिर्फ ऑक्टाहेड्रल, ऐसे जस्टिफाई कर पा रहा है CFT, विच VBT couldn't do. Okay, and there are some specific cases which VBT could not explain, where CFT comes to be more important case. Now the most important part which VBT could not explain, where CFT explains better, is the color. Okay, which is the prime importance of CFT's theory. Got it? कैसे colors ये बता सकता है. Is that clear? VBT क्या explain नहीं कर पाए? High spin, low spin. Yes, we could not explain. That's what I said, right? We took a mild assumption there that कि एक strong field है, weak field है, उसको pair कर दो, फिर उसमें high spin, low spin कर दिए, correct? But that was not justified, at least not experimentally justified. But that was experimentally justified by CFT. Okay. So first thing, magnetic moments. हाँ सर, मैग्नेटिक मोमेंट वही पूछना था कि CFT justifies the best way बेटा, क्योंकि अब देखो एक एग्जाम्पल ही देखिए बताता. मैंगनीज CN6, ओके, एंड 3 माइनस, सॉरी 4 माइनस, करेक्ट. इसमें आप चेक करोगे तो मैंगनीज इज एक्चुअली +2 एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. गॉट इट? CN माइनस. ओके, सो मतलब ये 4s0 D5 configuration. D5 configuration. So D5 configuration, only if you look in terms of VBT without splitting of orbital 1 2 3 4 5, correct? How you used to split, how you used to draw here 1 2 3 4 Pair up कर दो. 5, ऐसे हम लोग कर देते थे, correct? सिर्फ पेयर अप कर देते विदाउट एनी लॉजिक. इज दैट क्लियर? Yes, Okay. sir. बट CFT, through CFT we learned that कि इसको actually में this will split into two set of new orbitals. One is T2G, the other one is EG, and CFT being I mean delta naught being quite high compared to that of pairing energy in case of CN minus, we justified the fact that पहले ये complete होगा, उसके बाद ही वो ऊपर जाएगा. ये समझ में आया? हाँ Okay, so this justification is what is given by manganese, I mean by CFT. Okay, I guess that is clear, right? Yes, sir. Same way, suppose if at all I had chromium CN6 or ammonia for that matter, NH3 6 3 plus. Okay, अमोनिया EN ये सारे स्ट्रॉन्ग है, तो एक्चुअली वो पेयर करना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, और ये सब एम्प्टी हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है. वो सिर्फ 3 के 3 वैसे ही अनपेड वैसे ही दिख रहे हैं वहाँ पर, करेक्ट. एंड फॉर दैट रीज़न ऑल्सो CFT एक्सप्लेन्स द बेस्ट. सो ये सारे केसेस में CFT एक्सप्लेन कर सकता है. ओके, सो इट विल जस्टिफाई ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट्स. इट विल justify high spin, low spin complexes. Got that? Any doubt? Right, sir. Now let us come to colors of complexes. मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ. ओके, जस्ट बी विथ मी. There are
three ways by which we usually see colors forming. Okay, one is DD transition. One is DD transition. One is ligand metal charge transfer. Metal ligand charge transfer. Ligand metal charge transfer and metal ligand charge transfer. These are the three ways primarily by which we can observe some color formation is there for complexes. Okay. So in complexes, usually in complexes we usually see DD transitions. We usually see this as DD transitions. Okay. DD transitions में हो क्या रहा है यहाँ पर? Suppose the three set of orbitals which are present here, which is T2G, and the other two sets, which is EG. If there is an electron present in T2G, got it? On providing energy, यहाँ से ऐसे h nu, on providing energy, this electron will excite to the higher orbital here. Is this get? I hope you guys are following me on this. Okay. हाँ sir. Right. So that means it is absorbing electron absorbing radiation sufficient enough to excite from T2G to EG. Okay. So when it absorbs, एक कलर ऑब्जर्व हो रहा है तो दूसरा क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्ट होना चाहिए. तो अब ये देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन यहां से वापस भी आ सकता है या ऐसा भी हो सकता है, बाकी भी ऑर्बिटल से ना, कि यहां से किसी और ऑर्बिटल में चला गया फिर वहां से इधर आ रहा है. दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स. आर यू गेटिंग इट? बट ऑब्जर्व करते समय ये इतना ऑब्जर्व करेगा, इसका गारंटी हम लोग डेफिनेटली दे सकते हैं. सो एक सैंपल में इतना बोल सकते हैं कि मैक्सिमम सैंपल, लाइक आई हैव 1000 कॉम्प्लेक्सेस, 1000 मॉलिक्यूल्स है. 1000 मॉलिक्यूल्स में ये बोल रहा हूँ कि यार 990 मॉलिक्यूल्स सारे के सारे ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट व्हेन दे आर रिफ्लेक्टिंग बैक सारे 990 सेम रेडिएशन देना ये जरूरी नहीं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके. सर पेंटागन बनाओ. अभी देख भाई, बन गया मेरा. तुम लोग को अच्छे से बना थोड़ा. ठीक है, मैंने इतना दिमाग नहीं लगा, बना दिया मैंने. चलो अभी बना लिया सबने. साथ में रिपीट कर करके करेंगे, वरना तुमको आदत नहीं पड़ेगी. किया है? हाँ सर. एक सेकंड. हो गया. ओके, नाउ लेट अस सी. ओके, स्टार्ट करेंगे हम लोग पर्पल से.
सॉरी वायलेट्स। सो वी यहाँ से स्टार्ट करो, राइट एक्सट्रीम से, वी आई, ओके, बी, वी आई बी, देन बी जी, ब्लू ग्रीन बोलते इसको, ओके, वी आई बी बी जी, देन ग्रीन, okay, then yellow green, just like blue and blue green होता है वैसे ही green and yellow green होता है, then we'll have yellow, then orange, red, and last one is purple। बना व्हील सबका? यस सर। ओके, अब इसका मतलब क्या है देखो, if violet, if violet is absorbed, what is the complementary color you will see? Yellow green. येलो ग्रीन, If red is absorbed, what is the complementary color you will see? Blue green. Okay, bluish green basically. Okay, same way, if yellow is absorbed, what is the color you will see? Indigo. Okay, orange absorb हो रहा है तो क्या मिलेगा? Blue. Got that? ग्रीन अब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या मिलेगा? पर्पल। या पर्पल अब्जॉर्ब होगा तो क्या मिलेगा? ग्रीन, कंप्लीट ग्रीन। ओके, इस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे तो ये आपको करना आना चाहिए। बोल गया सम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स इज अब्जॉर्बिंग सच अ काइंड ऑफ कलर, ओके, व्हाट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट कलर ऑफ इट, या अभी क्या क्या रिफ्लेक्ट करेगा सॉल्यूशन। हो जाएगा ये। व्हील को 2-3 बार प्रैक्टिस करो यार, तभी याद होगा ये। ओके, last thing I'll end with this. Suppose if at all I have to compare cobalt CF6 3 minus cobalt H2O 6 3 plus cobalt NH3 6 3 plus. So if I compare these two, right, you know that this is a very weak field ligand. Okay, this is normal, मतलब बीच में आ जाता है, and this is strong, right? Strong field will give more splitting, correct? अच्छा, इससे भी strong cyanide CN6 3 minus, right, very strong. Got it. So if at all I compare gamma new absorbed, absorption spectrum देख रहा हूँ मैं, इसका mu absorbed किसका ज़्यादा होगा? 1 2 3 4 लेते हैं। 1 2 3 4 किसका ज़्यादा होगा बेटा? जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्लिटिंग हो रहा है उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अब्जॉर्ब करना चाहिए ना उसको, करेक्ट? इट वुड हैव वेरी हाई फ्री, इफ द गैप इज मोर यू नीड टू ऑब्जर्व हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का एनर्जी ज़्यादा होता है, करेक्ट? आर यू गेटिंग इट? हाँ सो प्रिफरेबली क्या ऑब्जर्व करेगा? वॉयलेट या इंडिगो ऐसा ऑब्जर्व करेगा, करेक्ट? तो यूजुअली जो लास्ट वाला दिख रहा है साइनाइड वाला, उसका कलर किधर होता है बेटा? येलो और येलो ग्रीन के बीच में होता है, समझ रहे हो ना? यस सर। यस हाँ, सर, okay. अब समझा? ओके, सो 4 3 2 1। सो अभी CO F6 3 माइनस है, उसका कलर रिलेटिवली किधर आना चाहिए? रेड पर्पल। वो रेड पर्पल एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, हाँ, रेड और पर्पल ब्लू ऑब्जर्व करेगा ग्रीन बेटा। ग्रीन देगा। हाँ, नहीं, पर्पल इज हाई बेटा, ओके, सॉरी सॉरी, स्पेशल कलर है, रेड प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है? रेड करेगा। रेड हाँ, कलर। इसको ये मत करना, पर्पल और वॉयलेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो दोनों ही हाई एनर्जी वाले हैं। रेड करेगा तो क्या दिखेगा? ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन। हाँ, सो ये ब्लू ग्रीन दिखता है ये वाला, ओके। वाटर
ब्लू दिखता है, क्यों? वो मे भी थोड़ा ऑरेंजिश ऑब्जर्व कर रहा है, तो यूजुअली ब्लू कलर दिखेगा। आर यू गेटिंग इट? वाटर, अमोनिया, अमोनिया भी वही ऑरेंज और येलो के पास पास में आता है, इसके लिए इंडिगो ब्लू आते हैं। देखो इसके लिए अमोनिया के जितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉपर कॉम्प्लेक्सेस, रिमेंबर, वो सारे ब्लू होते हैं, रीजन क्योंकि वो ज़्यादा ऑरेंज और येलो के बीच में अब्जॉर्प्शन है उसका। सी NH3 है ना, तो ज्यादा ज्यादा फ्रीक्वेंसी का ऑब्जॉर्व करेगा ना। कौन सा? NH3 है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है ना। बहुत स्ट्रांग नहीं करेगा ना वो, मतलब इंडिगो ब्लू वो सब नहीं करेगा, वो थोड़ा येलो ऑरेंज, येलो येलो ग्रीन, ग्रीन इस तरफ ऑब्जर्व करेगा। एब्जॉर्ब करेगा, तो हाँ, फिर तो उसके दिखना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स किस तरफ जा रहे हैं? ज़्यादा ब्लू वॉयलेट उस तरफ जा रहे हैं ना। पर्पल वायलेट। करेक्ट, पर्पल वॉयलेट ब्लू उसकी तरफ पर्पल जा रहे हैं। वायलेट। ठीक है, करेक्ट, हाँ तो वो रेंज में आएंगे, मतलब एग्जैक्टली बता नहीं सकते हम लोग, उस रेंज में आएंगे। ओके, चले। इज दैट क्लियर? लैम्डा कैसे रहेगा? लैम्डा अब्जॉर्ब्ड उल्टा। उल्टा। ओके, 4 लेस देन 3 लेस देन 2 लेस देन 1, ठीक है। राइट, सो नेक्स्ट क्लास पे इस पे क्वेश्चंस करेंगे, कलर्स पे काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, देन विल डिस्कस स्टेबिलिटी एंड स्टार्ट विथ आइसोमरिज्म। ओके, चलेगा। राइट, सो आई विल एंड द सेशन नाउ।